Good morning. Good morning. You all can switch on your cameras. All of you can mute yourself and switch on your cameras as well. So, Pragati ma'am, just let me know once we are ready with all the teachers. Hi, good morning, ma'am. All are ready? Okay, I would request everyone to switch on their cameras. Yes. So, Manisha ma'am, Khushi ma'am, Tumpa ma'am, please switch on your videos. Tumpa ma'am, Manisha ma'am. Yes. All right. So, how are you are attending this session for the first time with me? Please just raise your hand. Tumpa ma'am has not switched on their camera. She don't know how to use. Wait, I'm just doing. Huh? Yeah. Yeah. Can you please help? Yeah, yeah, just Good morning. Good morning. good So, morning. now, yeah. Morning, ma'am. Good morning, everyone. Yes. Good morning. So, how many of you can you just raise your hands and let me know you are attending the session for the first time with me? I think Shri Parna ma'am, yes. There Tumpa are ma'am, two, three Yes, teachers, ma'am. like Shifa ma'am, Shiparna ma'am. They are new. Manisha ma'am, Manisha Yeah, ma'am. Yes, she is actually not well. I think that's Okay, why she has turned off their no video. No, problem. No actually, issues, no issues. Manisha, yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, no problem, no problem. All right, yes. So today we will learn about teaching beyond textbooks. We all teach with textbooks, we all teach with boards, right? But today the main focus is on the classroom, the way, the environment we create for our class so that children love you and you love children. You already love children and children already love you. But children have to love studies as well, right? So for that, the classroom needs to be full of creativity. All of you, just think about your favorite teacher. I want each one of you to think about your favorite teacher. Okay. So you can take 30 seconds and think about your teacher. Remember what subject did they teach? How did they talk? Everything you just remember your one teacher whom you liked. Okay. You are able to understand what I'm saying, right? Now, whoever is finished, you can unmute and tell me about about that teacher whom you remember. What you remember. So I'll start with Tanya ma'am. Tanya ma'am? Yes. Yeah, I remember about class three when Okay. she was her name was Suparna, and she used to teach me English. So I have enjoyed her class in the rest of my life. Means I have done my schooling till 12, but my third class was very good. Okay. So why did you like her so much? The way she teach, the behavior, what she has done. Main thing was that what I also have learned from her that when nowadays when children are coming and asking to the teacher, maybe
One time they are not getting, then again twice or thrice they are coming for asking some question. So what teacher does, once I'm saying you're not understanding, they're saying something rudely like this or something arrogant they are showing. So what is happening now? The children are not asking anymore. If Yeah, they are having any questions, they are keeping inside. They are not clearing. And day by day, what happening when senior class is coming? Then what happened? That curiosity in studying is getting less. So this thing I have learned from her that she was very good. After the class also, if I go to ask anything about any subject also, other subject also, she used to very softly and very carefully she used to give me the answers and she used to solve my all problems. So that I remember the most. And yes. after then, few teachers were there, like in 10th, my boards. Those teachers, I have also got same reply from them also. They used to do this, that when I'm asking the question, they are treating, when we are, I was average. I was not excellent, I was average. So when I was, they were having the mindset that these children are average, what else they can do? So, Correct. yeah. So that time I used to feel bad, and day by day, what my asking question, any Reduced. curiosity about anything was getting less. Reduced. So, Got yeah. it. Yes. Anybody else who wants to Shri Parna, ma'am? Yes, Shri Parna, ma'am. Which teacher you remembered? Which teacher do you still remember? Yes, ma'am. Ma'am, right now I was thinking about teacher when I'm in class 8. Is a maths teacher, Molly ma'am. I was thinking about her only Why? Why were you thinking about her? What did you like about her so that you remembered her till now, after so many years also? because because she was that kind of teacher who never demoralized everyone. Because I'm not that topper in the class, um, but she always appreciate that and always not got the very much number in math. She also take the physics also, but she always appreciate and encourage that it's okay. Next time you will be better. And I think a teacher have that potential that never demoralize or weakness. She told always Correct. encourage people. So that thing I like about her, and I respect her so much. And that's the behavior that I remember rest of my life. Got it. Thank you so much for sharing. Anybody else wants to Thank you, share? ma'am. Can anybody else wants to share? Whom do you remember? Why do you remember her? Anyone? And then we'll proceed. Okay? Okay, nobody wants to share. So now you got to know that our favorite teachers are not the ones who completed the syllabus. Our teachers who were very good in their subject matter, those are not our favorite teachers. But those who made us feel capable, yeah, we are capable to do something. Those who showed kindness, those who encouraged, we remember them and their stories, right? We remember the smile, we remember the way they talk to us, not what they teach. Do you remember, Shri Parna ma'am, what exactly did you teach you? In physics, all the laws of physics, do you remember? No, right? It is not possible. For your Tanya ma'am, all the grammar rules, do you still remember? No. But you remembered how she cleared your doubts, how she Yes. gave with you when you were in the problem. So now you all are the teachers. I know you all are doing whatever whatever you can, but still there are problems which you face while teaching, right? There are problems like children are not listening, right? Children are not doing whatever you're asking them to do, and it is very common for children because you are dealing with smaller children, right? So the real curriculum is not completing the syllabus. That has to be in your mind. You will complete the syllabus because the syllabus is made in such a manner that it will get completed before the exams. But the way you treat your child is more important than the worksheets, right? They will never ever forget
the way your classroom make them felt, right? So today in this session, we will not discuss about teaching. You all are teachers, you know how to teach. We will discuss how to teach after that childhood memories are created through the classrooms they love. So basically, we have to treat children as lamps which has already a lot of oil in it, lamp which has a batti in it. बस एक माचिस की जरूरत है. You just need to light it up. So it's not that they don't know anything. They know many things. They know more than us because they are generation alpha. They know more than us. It's just that the correct kind of guiding light is required. That machish ki tilli, you are the machish ki tilli. Okay. So from now onwards, you will not think of them as students and you as teacher. You will think of them as a lamp which is full of oil, which has the batti and you are the machish. Right? Who will tell me what is this? Can you tell me what is this? Can everyone see? What is this? Pencil. Pencil. Right? But for me, this is not a pencil. This is confidence. This is creativity. So whenever I can write with it, I will tell the child that this, okay, you can write with it. Oh my God, you're so capable. So you are instilling confidence. If someone can draw with it, oh, you're so creative. If someone can ask a question, write a question, what is your name? Question mark. It means they are interrogative. So a pencil, which we think is a pencil, can be confidence, can be imagination. You yourself can change this pencil into a magic wand. You can say abracadabra. In the class, it is not that, if you say abracadabra, your syllabus will not get completed. Your friends first and treat you as a friend so that they can ask more questions. They can understand your emotions better. You have to make them feel playful also, which I know you all are doing. Just a little more effort from your side, not by thinking yourself as a teacher, but by thinking yourself as matchstick. Who can light their future, who are already full of fire. You just have to light that fire, right? So every classroom can become a magical place. Every classroom can become a lesson. So which child will enjoy lesson and which child will enjoy magic, you also know, right? You know the child category that they will enjoy lesson. So you know that this class is someone who's very sincere, and even if you say A for apple, B for ball, they are listening. Well and good. Continue the way you are teaching. But when you know that this class has a lot of mixed students, where if you just say this is apple, this is ball, they're not going to listen to you, right? Then you have to do something extra. Then you have to make this pencil a magic wand. And for example, suppose you're teaching A for apple. Okay. First of all, you should not be teaching as A for apple. That is another whole subject, that is phonics. You should introduce the sound of A. That is A says A. A says A. Now ask them, from this sound, which all words come? ऐसे कौन से words होते हैं? आप क्या words already जानते हो? ऐसे. The sound is A. You have to open your mouth out, right? A. Now they will, aeroplane. Oh, arrow. Oh, ant. So this is how what are you asking them? It starts with the sound A, not letter A. Sound A. So this is called activity-based learning. Activity-based learning means you're not going to simply tell A for apple, A for aeroplane, A for ant, A for arrow. No. You have to ask first them. This is the sound of A. अब ए वर्ड्स, ए साउंड से कौन से वर्ड्स होते हैं आपको बताना.
वो लोग गलत बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट 15 बच्चा में एक बच्चा सच सही बोल सकता है। कोई बोल सकता है एरो, कोई बोल सकता है एंट, कोई बोल सकता है एरोप्लेन। एंड नाउ व्हेन यू अप्रिशिएट देम, you will see when you introduce the sound of B, 5 more children will say, ma'am butterfly, ma'am ball, ma'am bat, because you have taught them b. अब ब से क्या क्या होता है? कोई बोलेगा बेसिन, कोई बोलेगा बॉल, कोई बोलेगा बैट, right? So we don't have to change the syllabus, we have to change the way you are teaching. Just to give it a magic wand touch. This is the same pencil, but for me it is confidence, creativity. But for you it is just a pencil, right? So you have to make magic wand, creativity zone, a How would you do that? By changing the way, introducing activities. Now, what is the problem? What is the most important challenge you think you face? Can anyone tell me? कि children say, what is the most important challenge which you are facing as of now? क्या problem आपको सबसे ज़्यादा आ रहा है बच्चों से? Anyone can unmute and say, yes, Tumpa ma'am. टुम्पा मैम, क्या आपको क्या प्रॉब्लम होता है बच्चों को पढ़ाने में? बोलो सुनते पाओगे, बोलिए, जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। आपको बच्चे को पढ़ाने में सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात में होती है? नहीं मैम, अभी तकलीफ उतना नहीं हो रहा है, हमको तो मैम सपोर्ट कर रही है, तो जैसे जैसे बोल रही है वैसे सब पढ़ा रहे हैं। नहीं, आप फिर भी पढ़ाते हो क्लास में, तो क्या दिक्कत आती है? जैसे बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे आपस में बात करते हैं, कोई बच्चों का अटेंशन बहुत कम है, कोई बच्चा क्लास में उठ के घूमने लग जाता है, कोई बोलता नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम आपको आ रहा होगा क्लास में। मतलब जैसे हम किसी को बोले ए फॉर एप्पल, बी फॉर, तो सब लोग जैसे बोलते नहीं है, कोई कोई बोलता है, कोई कोई बोलता नहीं है। हाँ, सो तो कम्युनिकेट ये नहीं प्रॉब्लम करते, होता है। दैट इज वन प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ। एनीबडी एल्स want to share? So Tumpa ma'am is saying कि not everybody listens to her. When she says everybody say A for apple, so somebody is saying, somebody is not saying, right? Yeah. Okay. Yeah, ma'am. Anybody I'm else? also having the same problem as I'm teaching the senior. What happened? Here, so we are say explaining them in a means comfortable language only, if needed. Means English so is the main background, but we are explaining them in Hindi also. If somebody is not getting few words, we are using as Bengali also. But still, 1 and 2 children, their means concentration level is not so good. What else in their mind that time is going? Man, tiffin kab hoga? Ma'am, practice. I mean, now the 15 August Independence Day is coming, so they are mostly engaged. They are always thinking about dance practice and all. So this few disturbance I'm getting in my class. Got it. Got it. Anybody else wants to share their problem? Yes, Kiran ma'am. Yes, ma'am. वो लोग कभी discipline नहीं करते हैं, जो बोलते हैं तो and they are not sitting properly. Sitting properly. Okay. I will not get to it. उन्हें बोले नहीं बोले फोकस बैठेंगे या मतलब किसी और से बात करेंगे, लेकिन So I could not hear you completely, but it was something I understood that when you're asking them to sit properly, they are not sitting properly, they're talking among themselves more. All right. So for you, Kiran ma'am, I'll come to each and everyone. But starting with you, Kiran ma'am, firstly, suppose they're not sitting properly, okay? So ask them, who will sit like a frog? That's a challenge which you give them. If they are little bit listening to you about the challenge, some of them, even between talking, they heard, okay, ma'am has given me a challenge to listen, to sit properly. Now children love challenges. They want to come first. And if you give a challenge that whoever is going to sit properly, or whoever is going to sit like a frog, or you can keep on changing it. Sometimes you can make who will sit like a butterfly,
who will sit like a frog, who can sit like a duck. So they will immediately, they will attend, like comes to your attention. Suppose the two of them were talking, okay, and you were asking them, sit properly, but they kept on talking and talking and talking. But the moment you said, okay, there is a challenge, whoever sits like a duck, and whoever sits like a duck the best way, I'm going to extend 5 minutes of their break time today. You will see that immediately out of 20 people in your class, 10 people, that 10 children want to sit properly and want to win that 5 minutes extra break time. So this kind of challenges. So today's children are not like us. Like, okay, ma'am ne bol diya, bacche ne kar liya. They will not do it. You have to give them some incentive. What is incentive? Kuch challenge. We have to give them some incentive to do something, because at the end of doing, they will get something. But yeah, you have to make sure कि हर बार आप ऐसे ही नहीं बोले, because they will get to know, oh, मैम को ये करवाना है इसलिए मुझे बोल रही है. Okay, so you have to make innovative things. जैसे एक बार आपने ये कर दिया, या रोज रोज अगर आप सेम चैलेंज दोगे तो उनको पता चल जाएगा कुछ मिलने वाला नहीं है. 5 मिनट्स ब्रेक एक्स्ट्रा मिलने वाला भी नहीं है. ये तो मैम हमें चुप कराने के लिए, बिठाने के लिए बोल रही है. Okay, so you have to come up with such ideas. I will also help you with such ideas eventually when we have further more sessions. Like today I've given you 2-3 ideas that let's all sit like a frog. And it's not a you aap teacher ho to aap nahi baithoge. First of all, you don't have to consider that, oh, I am the teacher, I have to be like this, I have to be like this. No. First of all, you become like frog. Don't think कि बच्चे क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे. They will feel that आप उनके लेवल पे हो. अभी उनको क्या लगता है कि टीचर तो यहाँ है. क्यों अपनी फ्रेंड से बात करते इतना खुशी खुशी, बिकॉज लगता है वो सेम लेवल. आपको वो यहाँ ट्रीट करते, इसलिए आपकी बात नहीं सुनते. अगर आप उनके लेवल पे आ जाओगे, आप खुद बैठ जाओगे फ्रॉग बन के, एंड आप चैलेंज दोगे कि लेट्स सी कौन फ्रॉग बन के बैठ रहे, यू विल सी 10 out of 20% विल कम टू योर लेवल. ये गैप क्यों है? बिकॉज टीचर्स और पेरेंट्स सोचते कि वी आर पेरेंट्स, वी आर टीचर्स, हाउ कैन आई गो डाउन टू देयर लेवल. But teaching cannot be effective until unless you are coming to that level. आपको उनको दिखाना है कि you both are in the same level. तभी वो अपने फ्रेंड से नहीं बात करके आपसे बात करेंगे, राइट? अभी क्या हो रहा है, आपकी बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको फ्रेंड का गॉसिप लग रहा है, राइट? कल टिफिन में मम्मा ने क्या दिया, कल रात में मैंने क्या खाया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. बट आप कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें करोगे अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस, ये उनका अटेंशन आपकी बातों में आ जाए, वो आपकी बातें सुनने लगे. वंस आप बातें सुनाना स्टार्ट कर दो अपना, देन यू स्विच टू A for apple, B for ball, whatever, maths 1 2 3, हिंदी, बंगाली, जो भी आपका सब्जेक्ट है, राइट? सो अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपको कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स करना होगा. दैट इज नॉट रिटन इन द सिलेबस. वो आपके टीचिंग कोड ऑफ कंडक्ट में भी नहीं लिखा है, बट यू हैव टू डू. कमिंग टू तानिया मैम, कॉन्सेंट्रेशन के लिए apart from brain gym exercise and meditation, there is nothing. अगर बच्चा बड़ा है, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4 में आ गया है, and they are not yet practicing brain gym exercise, they are bound to भटकना उनके लिए possible है, very much possible. Since you are telling that Independence Day practice हो रहा है, start teaching in a song, one of the lyrics to take from the song. Convert your teaching one line only. आपको मैं नहीं बोल रही पूरे सिलेबस को आप एक सॉन्ग बना दो, एक लाइन को आप इंडिपेंडेंस डे के किसी एक सॉन्ग में कन्वर्ट कर दो. फॉर एग्जाम्पल, यू आर टीचिंग देम साइंस एनवायरमेंट, यू आर टीचिंग देम वाटर साइकिल. सपोज वी नो वाटर साइकिल. सो वाटर साइकिल में क्या होता है कि इवेपोरेशन के थ्रू हवा गर्म होके ऊपर क्लाउड बन जाता है, रेन आता है, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज, राइट? सो मे बी यू आर टीचिंग दिस. द सेम थिंग you can sing in the Jana Mana Gana format. The water gets heated up. Everyone say now. आप लोग सब बोलो. The water gets heated up. It travels. The water is heated up. It travels up. Everyone, ma'am, Khushi ma'am. Up. It becomes dark clouds. It
It comes down, It's down, become down. down, clouds. Then rain comes down naturally. Then rain comes. Then rain comes down gradually. This is a water cycle. This continues. This is a water cycle. This continues. And this continues. सो आउट ऑफ नोवेयर वो लोग बोलेंगे अरे अभी तक तो मैम बोर्ड में ड्राइंग बना रही थी कि पानी ऐसे इवेपोरेशन से जा रहे हैं, अभी मैम गाना गाने लग गई. ऑल ऑफ द 20 पीपल विल कम विथ यू बिकॉज उनको क्या पसंद है, वो लोग टीवी में क्या देखते हैं, मोबाइल में क्या देखते हैं, सॉन्ग्स, राइट. वीडियो में क्या देखते हैं, एक्टिविटी, एक्शन. एंड हम लोग क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं, एवरीवन टेक आउट योर नोटबुक, रीड पेज नंबर 1. वाटर साइकिल, वाटर गेट्स हीटेड अप. किसको इंटरेस्ट आएगा, अब बताओ. वो बच्चा वेट कर रहा है घर जाने के लिए, घर जाते उनको क्या मिलेगा, टीवी, फोन. तो वो क्यों रहना चाहेंगे, वो क्यों सुनना चाहेंगे आपकी बात. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा सिलेबस आपको गा गा के पढ़ाना है, बट फ्यू प्लेसेस आप चुन लो अपने मन से कि ये मैं, अरे ये सॉन्ग, इसका मैं बना सकती हूँ एक सॉन्ग जो वंदे मातरम सॉन्ग से मिलता जुलता बन सकता है, राइट. क्योंकि आपको पता है आपका सब्जेक्ट क्या है, राइट. सो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू सॉन्ग, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एक्टिविटी. चलो आज हम लोग एक हिंदी का स्टोरी पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश का स्टोरी पढ़ा रहे हैं. उसमें अगर स्टोरी में एक काबुली वाला है एंड एक मिनी है, सपोज इन स्टोरी देयर इज अ काबुली वाला एंड अ मिनी. सो ओके, राघव कम, कॉल एनीवन फ्रॉम योर क्लास, मेक देम काबुली वाला. कॉल एनीबॉडी एल्स, गर्ल मिनी बन जाओ. एंड देन राघव यू हैव टू act like a काबुली वाला. So you will say ड्राई फ्रूट्स ले लो, ड्राई फ्रूट्स ले लो. अरे दे विल थिंक ये तो एक्टिंग क्लास चल रहा है. It is not acting class, it is literature only. You are making them teach the story only because they are living it. They are living that story. It is going to the long term memory. मैं ये काबुली वाला स्टोरी क्लास 7-8 में पढ़ी थी, बट मैं क्योंकि मैंने स्किट में परफॉर्म किया तो मुझे आज आउट ऑफ नोवेयर आई टुक दिस स्टोरी ऑफ काबुली वाला, राइट. सो दिस इज हाउ आप अगर किसी चीज को जी लो ना, नॉट जस्ट पढ़ो या रटो, इफ यू एक्चुअली लिव इट, इट इज गोइंग टू बी अब एग्जाम में. अगर सपोज भूल गया कि काबुली वाला ने मीनी को क्या पूछा था, अगर आपका क्वेश्चन ये, तो उसको वो स्किट के थ्रू याद आएगा कि अरे वो ये पूछा था, ड्राई फ्रूट्स ले लो, ड्राई फ्रूट्स ले लो. वो अपने लैंग्वेज में एटलीस्ट ये लिख देगा कि या काबुली वाला वाज आस्किंग टेक ड्राई फ्रूट्स, टेक ड्राई फ्रूट्स. अगर हिंदी है तो at least something they are going to remember, and they will start listening to you. By all these things, these methods, they will start listening to you. That is the main thing. Okay. And Shri Parna ma'am या टुम्पा मैम ने बोला था कि they are not sitting, they are not listening, they are not speaking. अगर मैं बोल रही हूँ बोले they are not speaking. तो अगर वो नहीं बोल रहे हैं, then for 1 minute change the topic. Try changing the topic. For example, मैम आप सिखा रहे हो सर्कल, ओके, सर्कल का शेप ये होता है. तो अभी कौन सी मैम सर्कल पढ़ाती है, मतलब मैथ्स शेप्स कौन सिखाते हो आप लोगों में से, कैसे सिखाते हो, मेरे को एक डेमोन्स्ट्रेशन करके बताइए. Because I don't know who is a teacher for which subject. So who teaches circle, shapes? कौन सिखाता है? खुशी मैम? Yes. Okay, suppose I am your student. You teach me circle. Today आपको मुझे circle सिखाना. So how do you teach in general? यस मैम, जैसे तो सर्कल्स होता है, ट्रायंगल होता है, तो मैं पहले शो करती हूँ, बोर्ड में ड्रॉ करके शो करती हूँ. फिर मैं एग्जांपल्स देती हूँ कि सर्कल के मतलब सर्कल के शेप के क्या क्या होते हैं. तो फिर स्टूडेंट्स मतलब खुद ही बोलते हैं कि मैम ये फिर ट्रायंगल्स के शेप के क्या होते हैं, लाइक स्क्वायर शेप के क्या क्या होते हैं, एंड स्फीयर शेप के क्या होते हैं, स्फीयर मतलब बॉल, स्फीयर शेप के क्या क्या होते हैं, बॉल. तो ऐसे एग्जांपल्स देके मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्लास में. Okay. So for example, मैं आपकी जगह होती हूँ, मुझे सर्कल समझाना है, तो सबसे पहले अगर मैं सर्कल बता रही हूँ तो मैं दूसरों की बात नहीं करूंगी. मैं स्क्वायर, स्फीयर, ओवल, ट्रायंगल की बात नहीं करूंगी, because today my concentration is only on circle. Okay. So first of all, I'll draw. Okay, good.
बिकॉज ये एक्टिविटी है ना, आई विल आस्क देम ऑल्सो कि चलो जैसे मैं बना रही हूँ आप बनाओ. सो उनका ब्रेन चल रहा है बिकॉज दे आर यूजिंग अ पेंसिल टू ड्रॉ इन द नोटबुक ऑल्सो. सो आप अपनी जो भी नोटबुक है उनको बोलो कि जैसे मैंने बनाया, ऑल ऑफ अस लेट्स ट्राई. दे आर मेकिंग, देन मेक इट फ्रॉम योर हैंड. मेक अ सर्कल, एवरीवन मेक अ सर्कल फ्रॉम योर हैंड. क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि दिमाग कब चलता है? जब हाथ भी चल रहा हो साथ साथ. आस्क देम टू मेक अ सर्कल फ्रॉम योर हैंड. सब कोई बना लेंगे, एवरीवन विल मेक. देन अपना बिंदी दिखाइए. बिंदी इज विच शेप? जनरली बिंदी इज सर्कल शेप. अगर आपका बिंदी नहीं है सर्कल, आप एक बिंदी का पत्ता लेके आइए. बिकॉज दे आर सीइंग देयर मदर्स, दे आर सीइंग देयर नानी माँ, दादी माँ, बुआ, मौसी, एवरीवन, चाची, दे नो दैट बिंदी दिखता है उनको, राइट? तो उनको आप बिंदी का पत्ता लाके दिखाइए. आप उनको चूड़ी दिखाइए. बैंगल्स, व्हाट शेप इज बैंगल्स? सर्कल. आप आपके घर में अगर कार का कोई बच्चे का कार का टूटा हुआ टायर है, व्हील, you bring the wheel because बच्चे खेलते हैं कार से. Why will they remember more? Because they are seeing these things. You show them, tell them that moon is circle. Because हर रात को बच्चा Now to eraser, they are also bringing like a tire that is also circle. yes Ring we can see. yes. So आपको वो चीजें एक्टिविटीज के लिए उस ऑब्जेक्ट लेके आना है. अगर मैं बी फॉर ब सिखा रही हूँ तो मैं बॉटल दिखाऊंगी कि दिस इज द बॉटल, तो वाटर मेरे पास होना चाहिए. सो यू नो कि आज आपको ये सिखाना है, वो आप कुछ अपने बैग में लेके आइए घर से. नोबडी विल टेल यू, इट इज योर क्लास, राइट? अगर आप बोलोगे कि कैसे पढ़ाना है, दैट इज नॉट अ फेयर थिंग ना. ये आपका क्लास है, आपको जैसे भी उसको समझाना है कि दिस इज सर्कल, तो वो चीजें आपके पास होनी चाहिए, आपके बैग में होनी चाहिए. मुझे आपको पेंसिल का एग्जाम्पल देना था तो मैं पेंसिल ला के रखी सामने, राइट? तो वैसे आपको कुछ भी समझाना है तो वो चीज आपके पास होना चाहिए, राइट? सो दिस इज हाउ डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग, कि सिर्फ ड्राइंग करके नहीं या सिर्फ कॉपी से बुक से दिखा के पिक्चर दिखा के नहीं. यू कैन ऑल्सो आस्क देम, एवरीवन स्टैंड अप, ओके, 10 of you come forward and all of us will make a circle. अब सर्कल बनाओ उनके सामने हाथ पकड़ के, राइट? क्योंकि छोटे बड़े बच्चों को तो सर्कल बहुत अच्छे से पता है, बट छोटे बच्चे के लिए सर्कल नहीं. पर लेकिन आप उनके लिए रीइंफोर्समेंट थिंग्स लाओगे जो लोग वो देखते हैं डेली. रोटी जैसा बेसिक चीज जो हर घर में बच्चा खाता है, दैट इज शेप ऑफ द सर्कल. सो वैसे वैसे बेसिक चीज लाओ जिससे आपका बच्चा बहुत जल्दी से याद से पहचान जाए, वो सर्कल और ओवल में कंफ्यूज ही नहीं होगा. वॉच, सब अपने पापा को, मम्मी को, किसी ना किसी को देखता है वॉच पहने, तो आप देखो वॉच का जो डायल है वो भी सर्कल है. तो उस दिन आप सपोज वॉच नहीं पहनते हो, ठीक है, उस दिन आप कहीं से वॉच लेके आ जाओ, जस्ट टू शो. अगर आप पहनते हो तो खुद का दिखा दो, अगर आप चूड़ी पहनते हो तो खुद का दिखा दो, वरना लेके आ जाओ. बिंदी लगाते हो तो खुद का दिखा दो, वरना बिंदी का पत्ता लेके आ जाओ. सी, थिंग्स आर अराउंड अस. पढ़ाने के लिए कुछ हमें बहुत स्पेस से कुछ नहीं लाना है. एवरीथिंग इज इन आवर होम एंड वी यूज इट. ऐसा भी नहीं कि हमें बहुत ढूंढना पड़ेगा. वी हैव टू अप्लाई कि कहाँ हम क्या ला सकते हैं जो बच्चे कनेक्ट करेंगे. जैसे व्हील्स, टायर्स, वो बच्चे बहुत ज्यादा कनेक्ट करेंगे. मम्मी से लोग क्लोज होते हैं तो मम्मी की चीजें, रोटी, चूड़ी, बिंदी, वो बहुत ज्यादा कनेक्ट करें, राइट? एंड उनको बनाओ, हाथ से बनवाओ. आप लोग खुद बोलो चलो लेट्स मेक अ सर्कल. सो सर्कल में खड़े हो जाओ. नाउ इट विल गो इनटू द. अब आप उनका टेस्ट ले लो सर्कल में, इट विल बी गुड, उनको आ जाएगा, राइट? नाउ हम लोग को ये जानना होगा एंड मानना होगा दैट चिल्ड्रन आर नॉट डिफिकल्ट. हम बोलते हैं आजकल के बच्चे बाप रे बाप कितना परेशान करते हैं. ये अपने मन से आप निकाल दो. दे आर नॉट डिफिकल्ट, दे आर डिफरेंट. हाउ दे आर डिफरेंट? बिकॉज नाउअडेज चिल्ड्रन आस्क मोर क्वेश्चंस. They are not like us कि अगर बोल दिया अभी दिन है तो दिन है, रात है तो रात है. अगर आप बोलोगे दिन है, क्यों दिन है, कैसे दिन है. अगर आप रात है बोल दोगे, कैसे रात है, क्यों रात है, रात क्या होता है. सो nowadays children lot of inquisitiveness because जब बच्चा पेट में होता है ना, मदर्स इतना अवेयर होती है, वो मोबाइल देखती है, वो पढ़ती है, वो लिखती है, वो घर का काम करती है, बहुत कुछ जानती है. तो एज अ like in the womb only they know many things and that's a fact that is scientifically proven कि बच्चे की माँ
जितना कुछ करेगी ना बच्चा उतना ही ज्यादा एक्टिव रहेगा। अगर वो प्रेगनेंसी में ऐसी रहेगी तो बच्चा भी थोड़ा, आप देखो कोई कोई बच्चे बहुत डल एंड सम पर्सन आर वेरी एक्टिव, हाइपर एक्टिव। तो वो तो बच्चे सीख के पैदा हुए, राइट, उनको तो एक्सटर्नली कुछ नहीं आया है, वो तो सीख के पैदा हुए। नाउ बिकॉज पहले जमाने में हमारी मम्मियां बहुत सीधी सादी होती थी, हम भी बचपन में सीधे साधे होते थे, राइट। हम बदमाशियां करते थे बट इतना नहीं जितना आजकल के बच्चे करते। हम क्वेश्चंस पूछते थे बट हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम इतना पूछ ले, इतना कर ले, हम डरते थे। बट आजकल की मम्मियां ही डरती नहीं है जब बच्चे पैदा होते। तो इसीलिए बच्चे भी निडर और बिंदास और बहुत बोलने वाले पैदा होते। कुछ बच्चे होते बहुत शाय, तो आप देखोगे कि उनकी मम्मीज में भी वो जब वो प्रेग्नेंट थी वो डरी हुई थी या जो भी रीजन है, तो हम बच्चे पे ब्लेम नहीं लगा सकते। इट इज भगवान हैज मेड देम लाइक दैट, राइट। कोई बच्चा शाई होता है तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जिद्दी है तो ही इज नॉट जिद्दी, ये अपने जानबूझ के जिद्दी नहीं हो रहा है। गॉड हैज गिवन हिम और हर दैट नेचर ऑफ स्टबर्ननेस। हाउ यू विल ब्रेक दैट स्टबर्ननेस, दैट इज अप टू यू। यू विल नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लेम, कह रही यार ये तो बहुत जिद्दी बच्चा, तो कुछ बात ही नहीं सुनता। यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा जिद्दी है, इसका नेचर ऐसा है। ओके, आई विल ट्राई समथिंग एल्स फॉर हिम कि वो अपना जिद छोड़ के मेरी बात मान ले। ओके, फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग दैट दिस जनरेशन इज टोटली डिफरेंट, दे ऑब्जर्व मोर। आप देखोगे बहुत बार आप कुछ मत बताओ, दे हैव सीन यू, दे हैव हर्ड समथिंग, दे आर मोर अवेयर। आप 2 दिन फोन में बात कर रहे, दे आर लिसनिंग, खेलते खेलते वो सब कुछ सुन रहे, राइट। अब 2 टीचर्स आपस में बात करी, दे आर लिसनिंग, वी डोंट रियलाइज। अगर हम बात कर रहे हैं ना, दे आर लिसनिंग एवरीथिंग। सो दे आर मोर अवेयर, they are more listening, they are asking more questions, and they have less attention span. And it is not your problem, Tanya ma'am, this is worldwide, not just in India, Yes. worldwide, because of the age of short, because of the age of reel. कितने seconds का होता है reel? 30 seconds. उतना भी हम पूरा reel नहीं देखते। 10 seconds के बाद scroll हटाओ। 10 seconds में हम decide कर लेते कि मुझे ये वीडियो देखना है कि नहीं, right? Even they do it, even they do it. हमारे जमाने में फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल का इतना एक्सेस ही नहीं था भी तो ऐसा मोबाइल नहीं आता था, वो डब्बा वाला मोबाइल आता था, तो एक्सेस ही नहीं था। तो आई अब एक्सेस है तो उनको आता है, और आता है तो इनका अटेंशन स्पैन लेस होता है। बट नाउ वी आर अवेयर कि मेडिटेशन इज द की। एवरी डे बिफोर स्टार्टिंग योर क्लास 1 minute of Om chants. Meditation. Yes, yes. Meditation is compulsory. After the class, in the middle, when the class is started, 1 minute break for brain gym exercise. Any brain gym exercise. Otherwise, you cannot get their attention. They will not remember. They will not be attentive. At the end, after the class, also, you do some exercise to close the class. Bell बजा और टीचर निकल गई. That should not be the case, right? Bye बोल के टीचर चली गई, नहीं. We should just do a recap. So, what did we learn today? We learned circle. We learned A says A. We learned water cycle. आपको वो 1 minute का reinforcement देना है brain को. 1 minute it takes. You will not get late to the next class in 1 minute, right? So वो आपको reinforcement देना है. What is reinforcement? Repetition. Children thrive well when repeated. अब देखोगे nursery rhymes में Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, yes sir. Why yes sir 2 times? क्यों? एक बार भी बोलने से हो सकता था, right? क्योंकि सबको पता है कि children like repetition. So that is why, since nursery rhymes भी हमें सिखाता है कि repetition is so necessary, so हम class जब start कर रहे हैं, we will revise it from the previous 1 day before, and we will end the class with whatever we have revised it today, like we have done it today, right? So this is how they will remember, through repetition. And the most important thing and the last thing, that is activity based doing, that is movement based. मूवमेंट कैसे हुआ? अगर आपने ऐसे हाथ करने बोला, दैट इज मूवमेंट. आप फ्रॉग के बारे में, आप एनिमल सिखा रहे एंड यू आर टॉकिंग, टीचिंग देम अबाउट फ्रॉग्स. आस्क देम टू जंप लाइक फ्रॉग्स.
क्योंकि बॉडी इज कनेक्टेड टू ब्रेन. ब्रेन अकेले में नहीं चलता है. Whenever body is moving along with the brain, brain works, right? So whenever you're teaching some animal, cat सिखा रहे हो, everyone you should say meow. अगर आप कैट के बारे में सिखा रहे हो, you have to say meow कि कैट कैसे बोलती है. चलो सबको कैट के बन के दिखाओ. So this is how they will be understanding that okay, this is the cat. ये C से start होता है and it says meow. So a holistic thing आपको देना है with repetition and activities and demonstration. Not just by saying or drawing, you have to demonstrate it by bringing certain things. आप वो चीजें लेके आओगे, then only they will understand. Okay, ये तो हम देखते हैं, right? Now I have a question for you. How many of you can learn cycling by reading a book? Raise your hand. किसको साइकिल चलाना आएगा अगर मैं ये बुक से पढ़ाऊं कि इस मेथड से हम साइकिल का पेडल घुमाते एंड आप सीख जाओगे साइकिल. Who can guarantee to me that you will be able to learn how to ride a bicycle if I taught you through a book? Can any one of us learn? Okay. Can you all tell me who can read swimming? If I teach you now that ऐसे ऐसे हाथ करते and we swim. Tell me. None of you, right? Why? Because you need water. You have to actually send the child inside the water to learn swimming. For learning cycling, you have to give them a cycle without the side wheels, the balancing wheels. Only then, if you gave a cycle and you gave a balancing wheel, they will not learn cycling because the balancing wheel is only helping to cycle, right? They themselves will not. So a book or a board is your additional thing. The main thing is making them do it yourself. That is activities, through activities. आपको उनको बनाने देना है. When you are teaching that butterfly has so many colors. Butterflies are very colorful. You have to give them a butterfly to draw and color it with multicolors. Right? So I am again telling you it is not possible for everything. But for things like अगर आप रेनबो के कलर्स याद कराना चाहते हो कि रेनबो में विबग्योर कलर्स है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तो आपको वो रेनबो उनको देना है बनाने. एक पेज में आप ऑलरेडी उनको बोलो पहले रेनबो ड्रॉ करें, एक एक अलग अलग कलर करें, देन ओनली दे विल रिमेम्बर. दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल. आपके सिलेबस में जो भी चीज है आप उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हो ताकि उनको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन लर्निंग मिले. So basically it is called multi-sensory learning. What is multi-sensory learning? Multi-sensory learning involves hearing, पहले आप बोल रहे हो, seeing, आप दिखा रहे हो through pictures, touching, जैसे मैंने बोला आप बैंगल लाके उनको बोलो, you can touch the bangle, देखो ये बैंगल होता है, बिंदी, ये बिंदी होता है. So that is called multi-sensory, not just your brain, but your eyes, your mouth, your ears, your hand, everybody is touching. And then comes speaking and writing. पहले तो सुनना है. हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड में लिख दिया, लिखो. We directly jump into writing. Tell me very frankly, do we do it or not? क्या हम बोर्ड में लिखते हैं, हम बच्चों को बोलते हैं copy the question, copy the answer. बड़े बच्चे होते तो क्वेश्चन आंसर, छोटे बच्चे होते तो 1 2 3 4, राइट? क्या हम कभी भी उनको बताते हैं कि ओके लेट्स प्ले वन गेम टुडे? सपोज यू आर टीचिंग नंबर्स, ओके, आपको उनको 1 to 10 बताना है और आप सिखा चुके हो, लेकिन कैसे आप उसको प्रैक्टिकली खेल सकते हो? लेट्स प्ले अ गेम कॉल्ड फायर इन द माउंटेन. वेरी सिंपल गेम. मैं जब स्कूल आई थी तब मैंने करवाया भी था फायर इन द माउंटेन बच्चों के साथ. सो यू कैन ऑल्सो डू इट इन द क्लास फॉर 2 minutes. Fire in the mountain, run, 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 3. तो बच्चा काउंट करेगा खुद में, ओके 1 2 3. अब वो डिसाइड भी कर रहा है, तो उनका ब्रेन कि मैं राहुल को लूं कि मैं प्रीति को लूं, क्योंकि अगर मैं दोनों को ले लूंगा तो हम 4 हो जाएंगे, हम आउट हो जाएंगे. सो डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो गेटिंग इम्प्रूव्ड, कॉग्निटिव थिंकिंग इज ऑल्सो गेटिंग इम्प्रूव्ड, एंड काउंटिंग तो हो ही रहा है साथ में, राइट? अगर मैं काउंटिंग सिखा रही हूँ तो मैं ये सिखाऊंगी कि लेट्स ईट सम आइसक्रीम्स टुडे. दे विल बी ब्लास्ट, अरे आइसक्रीम मिलेगा, बट देन यू शो देम अ पिक्चर कोन
आप कोई कोन बना के लाओ and give them some circles, cut out circles, and picture cone में आपको बोलना है कि I want 2 scoops of ice cream. So they will be happy in even this नकली आइसक्रीम, क्योंकि वो आइसक्रीम सोच के उनको वो किक मिलता है, वो आइसक्रीम, ओ टॉफी, ओ चॉकलेट, राइट? तो आपको क्या सिखाना है? नंबर्स, पर आप लेके क्या आए हो? आइसक्रीम, बिकॉज आपको उनका पसंद नापसंद पता है. यू नो द बॉयज लव कार्स, तो आप उनको एक्टिविटीज विद कार्स दो. यू नो गर्ल्स लव बार्बी डॉल्स, तो आप उनको कुछ एक्टिविटी दो जिसमें डॉल से रिलेटेड हो. यू हैव टू नेम दिस डॉल विथ ए. क्या क्या नाम दोगे? कोई बोलेगा आरती, कोई बोलेगा अनीशा, कोई भी नाम दे सकता है. आपको अल्टीमेटली ए सिखाना है, राइट? अब आप एरोप्लेन दे के सिखाओ या अनीता, आशनी, कोई डॉल के नाम से सिखाओ, right? So it is up to you how you will teach. The end product should be that they should understand what A stands for, right? Now, so I'll tell you one story. There were 2 teachers, okay, and teaching the same lesson in 2 different classes. One explained the whole concept with a lot of facts, science, AI, everything she told. And the other one explained the whole concept through a story. Years later, children from one class remembered the whole concept, while the children of the other class forgot the whole concept. Can anyone tell me which class children remembered the concept? The teacher who said Story one. everything by story. Yes, the teacher who took story as the medium. Can anyone tell me why? Why? क्योंकि पहली वाली टीचर तो बहुत फैक्ट्स एंड बहुत एग्जाम्पल्स एंड साइंस एंड एआई सब कुछ लेके बताई थी, द कॉन्सेप्ट, द लेसन. बट व्हाई चिल्ड्रन ओनली रिमेंबर द स्टोरी? Story में it was getting interesting. यस, स्टोरी हैज इमोशन, Yes. एंड बच्चों को साइंस फैक्ट्स नहीं समझ आता. नहीं समझ They understand emotion, they understand love. They will not understand Newton's law of motion easily. But if you tell that, you know what, one apple, it fell from the tree and got hurt and it started crying. And you know, this is how Newton understood that this is Newton's law of motion. उनको क्या याद रहेगा कि एप्पल गिरा और वो रोने लगा, Right. राइट? एंड धीरे धीरे अब जब यही स्टोरी उनको दोबारा कराओगे एंड अगेन यू विल से दिस इज व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, दे विल रिमेंबर. बट इफ यू से if there is an action, there is an equal reaction, they will not remember it, right? And ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, बड़ों के साथ भी है. You take example of class 6-7 students, even then you can use story. So जो national education policy 2020 है इंडिया में, the national education policy, this is emphasizing on storytelling. Why? Because it is said that कि जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है आगे जाके वो अपने कॉन्सेप्ट भूल जाता है. क्यों? क्योंकि वो पढ़ के मार्क्स ले आया. और जो बच्चा स्टोरीज के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू, हैंड्स ऑन लर्निंग, डिमॉन्स्ट्रेशंस के थ्रू कुछ भी याद किया, शायद उसको 100 में 100 नहीं आया, लेकिन उसको वो लाइफ लॉन्ग याद रहता है. सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? यस, श्रीपर्णा मैम, इफ यू आर सेइंग समथिंग, यू आर ऑन म्यूट. I cannot hear. Okay. So if somebody wants to say something, you have to unmute and say it. Okay. All right. So this is how demonstration works like wonders. Stories. Your child will not remember the lesson you teach or the worksheets you give, the homeworks you give. The child will remember how you taught them, what activities we did in the class. Right? आप देखोगे पेरेंट्स का आपके पास कंप्लेन आता होगा कि बच्चा कुछ बताता नहीं है कि मैम क्लास में क्या कराती है. कभी आपने किसी स्टूडेंट ने किसी पेरेंट ने बोला है कि मैम ये घर में कुछ बताता ही नहीं है बच्चा कि क्लास में क्या होता है क्या नहीं होता है? किसी भी पेरेंट ने आपको पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ये बात बोली है?
कि उनके साथ उनके बच्चा कुछ बताता नहीं क्लास में क्या होता है, छोटे बच्चों की, आई एम टॉकिंग अबाउट नर्सरी, प्ले नर्सरी, किंडरगार्टन, होता है ना ऐसा कि आप क्लास में बहुत कुछ कराते हो, आप कुछ राइम्स करा रहे हो, आप कुछ एक्टिविटीज करा रहे हो, और बच्चा नहीं बोलता है घर जाके, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द रीजन, बिकॉज दे डोंट रिमेम्बर। सो उनकी गलती नहीं है, बच्चे बहुत छोटे हैं, आज उन्होंने रेड कलर सीखा लेकिन वो घर जाके भूल जाएंगे। बट अगर आप पहले ही बोल दोगे, खुद से रेड कलर पहन के आओगे, या बच्चों को आप बता दोगे कि यू नो टुडे एवरीथिंग विल बी रेड, तो आप अपने क्लास में सब कुछ पर्पसली रेड कलर का रखोगे, तो वो बार बार देखेगा, बार बार देखेगा, अगर मैम टीचर ने रेड ड्रेस पहन के आया है, टीचर की क्लचर भी रेड कलर का है, टीचर का चूड़ी भी रेड कलर का है, बॉटल भी रेड कलर का है, सब कुछ रेड कलर का है ना, ऑटोमेटिकली घर में उसकी मम्मा बोलेगी आज क्या हुआ क्या हुआ। वो नहीं याद करना चाहते हुए भी उसको याद आ जाएगा, और इतना बार उसने रेड देख लिया है ना, आज मैम ने रेड कलर सिखाया, दे विल से इट। But they need reinforcement, they need repetition, because they are very very small, right? So once you do it, you will find that they are remembering. Suppose बच्चे बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, everybody is talking and talking and talking, you start playing a whisper game. You know what's a whisper game? Chinese whisper, right? You can do this कि आप एक बच्चे के कान में कुछ बोले, ओके, अब वो पढ़ाई का ही बात बोलो, आप उनको बोलो कि स्क्वायर हैज 4 साइड्स, चुपके से बोल दो, एंड दैट पर्सन विल टेल द अदर पर्सन। मे भी उल्टा पुल्टा बोलेंगे, स्क्वायर हैज 3 साइड्स बोल दिया किसी ने स्क्वायर सुना ही नहीं, कुछ और बोल दिया। एट द एंड जो लास्ट बच्चा है उसको बताना है कि आपने क्या सुना। बच्चे क्या सोच रहे, व्हाट आर वी डूइंग, वी आर प्लेइंग चाइनीज विस्पर गेम। और वो बात भी करना बंद कर दिए, बिकॉज पहले तो पूरा बात कर रहे थे, जैसे आपने बोला चलो आज हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, हम लोग चाइनीज विस्पर गेम खेलेंगे, तो वो गेम के थ्रू आपने बार बार बोला स्क्वायर हैज 4 साइड्स, स्क्वायर हैज 4 कॉर्नर्स, उस बच्चे के दिमाग में सेट हो गया कि स्क्वायर हैज 4 साइड्स। अब जब आप बताओगे दैट सर्कल हैज नो साइड्स, ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, तो वो इंटेंशनली सुनेगा और उसको याद होगा, बिकॉज एक बार उसने गेम खेला है, उसको ये मन में है कि शायद मैम एक और गेम खिलाएगी, चाहे आप खिलाओ चाहे नहीं खिलाओ वो आपकी बात सुनेगा, राइट? तो क्लास में आते ही सबसे पहले आपको अटेंशन लेना है एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट देना है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इन द क्लास ऑफ 20 चिल्ड्रन only 2% is sitting, all others are like somebody is standing, somebody is leaning. So जो 2 बच्चा बैठा है ना, you will say oh my god, I really love the way Aryan is sitting so nicely. You are giving appreciation. अब बच्चे को अप्रिसिएशन चाहिए, उसको अप्रिसिएशन मिला है, मुझे भी चाहिए। सो वो मैम आई एम ऑल्सो सिटिंग मैम, या प्रगति इज ऑल्सो वेरी गुड। रिया बोलेगी मैम मैं भी बैठ गई मैम, नो रिया इज ऑल्सो वेरी गुड गर्ल। सो दे रिक्वायर अप्रिसिएशन एंड somebody listen to you. Suppose you say Aman stand up and he stood up, thank you for listening. अब एक छोटा सा लाइन बोल सकते हो, यू आर अक्नॉलेजिंग दैट आपने बोला और उसने सुना, जस्ट वन लाइन, थैंक यू फॉर लिसनिंग अमन, कि मैंने बोला आपने सुन लिया, उसके लिए मैं थैंक यू बोल रही हूँ। दे विल थिंक वाओ, मतलब मैम मुझे थैंक यू बोल रही है, कितनी बड़ी बात है कि मैम मुझे थैंक यू बोल रही है। हम लोग नहीं बोलते ना बच्चों को, आप कितनी बार बच्चों को थैंक यू बोलते हो, आप टेल मी वेरी फ्रैंकली। नहीं बोलते, जरूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमें नहीं लगता कि अगर हमें लगता है कि मैंने बोला है स्टैंड अप, उसने स्टैंड अप हुआ, वो उसका ड्यूटी है स्टैंड अप होना, तो हमें थैंक यू का जरूरत ही महसूस नहीं होता। बट इफ यू अप्रिशिएट अ लिटिल बिट, यू विल सी नेक्स्ट टाइम जो बच्चा एकदम एडमेंट था, जो खड़ा नहीं होता था, वो भी खड़ा होने लगेगा। ओके, एंड कोई बच्चा बोले मैम मेरे से नहीं हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, आप बोल रहे हो राइट एस, राइट लेटर एस, नो मेरे से नहीं लिखा रहा, यू से लेट्स डू इट टुगेदर, ओके लेट्स डू इट टुगेदर। उसको लिखा ओके मैम इज विथ मी, शी इज टेलिंग डू इट टुगेदर, शी इज नॉट टेलिंग यू डू इट, शी इज टेलिंग लेट्स डू इट टुगेदर, वी ऑल विल डू इट टुगेदर। So these only words will make a positive impact, right? And if somebody in your class made a mistake, don't say directly say you made a mistake. Okay, with mistakes we learn. Can you see the change in the positive sentence? You made a mistake. Instead of that,
When we make mistakes, we learn, no problem. Once we made mistake, next time we'll not make this mistake. Right? Simple choti choti positive statements, they have, we don't realize it, but they have a huge impact. So I'll tell you my story. I was in class 9, okay, and मैं एक जगह ट्यूशन पढ़ती थी, एंड क्योंकि 10th में बोर्ड्स थे एंड आई वाज वेरी मच कि मेरे को बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स है, तो मैं 9 से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी. एंड मैं बहुत अच्छे से पढ़ के, एक चैप्टर था बायोलॉजी में, उसमें मैं बहुत अच्छे मार्क्स ले आई. एंड उसके पहले मुझे बायो में इतने मार्क्स नहीं आते थे. एंड यू नो व्हाट डज दैट टीचर से टू मी कि प्रगति, आपको 100 में 100 आ गया, आपने चीटिंग किया था क्या? I was so disheartened. I will never forget. I studied day in and day night for my boards, and for the first time, I got 100 out of 100. Instead of appreciation, my teacher just made an allegation to me. अब बात है, प्रगति 100 में 100 आ गया, चीटिंग किया था क्या? So I understood the importance of words. कितना इम्पैक्ट करता है एक बच्चे के लिए. आप जो भी बोलते हो ना, बच्चों के लिए टीचर का बात पत्थर की लकीर है. So whenever you say something, you just be mindful because we don't know it impacts. आज भी वो टीचर को तो याद भी नहीं होगा क्लास 9 में उसने मुझे ये बोला था, but I will never forget in my life कि कोई ऐसे भी बोल सकता है. अगर मैं मेहनत करके गई and she's allegation, giving me an allegation, putting an allegation on me that I've cheated, and I never used to cheat. I'll get less marks, but I will never cheat. And still she told like that. So I felt so bad. And I remember it till, like, मेरे को class 9 pass किया, I passed in 2007. So it was more than 20 years. Right? So that is how we should understand that words matter a lot. अगर आप अच्छा वर्ड बोलोगे, वो भी बहुत अच्छा वर्ड मैटर करता है. Similarly, when I went to class 10, there was the same biology ma'am, Anita ma'am, and in the boards exam, pre-boards exam, I got 99. She gave me her number and she said, बेटा, बोर्ड्स में तो अभी 2 महीना बाकी है, इन 2 महीना में अगर आपको कभी भी बायो में डाउट होगा ना, this is my number, you can call and ask, because I have seen that you are doing a lot of efforts. So can you see, I remember both the teachers, Satwant ma'am also and Anita ma'am also, but I remember both of them for totally different reasons. I remember Satwant ma'am to not say something to a child because it remains for the child forever. And Anita ma'am to appreciate. अगर मेरे को 98 आया in pre-boards and she wanted me to get 100 out of 100 and she gave her own number कि बेटा आपको कभी भी कोई problem होगा, you can call me. I've seen you have done a lot of efforts. I want you to come first in boards. So this is what appreciation does. They have a huge impact. They have a huge impact. Okay. So just encouragement was like, yeah, we can do it. No problem. We can do it. Right? So there is a separate topics like phonics that we will cover separately because phonics in itself is a very separate topic. So that I'm not going to cover today because here we have a mixed batch of teachers. Some teachers are elder class teachers and some teachers are lower class teachers. But that is also very, very important. जैसे मैंने बोला था कि A says A. That is more important than A. A is the name of that letter and A is the sound of that letter. So sound matters more because sound से ही recognition होता है. Right? Now, आपको classroom को बहुत बहुत creative बनाना है. Right? Everything can become your teaching aid. Sometimes this bottle cap, okay, this bottle cap can become. Sometimes you can bring leaves. Suppose you are teaching photosynthesis. ठीक है? फोटोसिंथेसिस एक कॉन्सेप्ट आप सिखाते हैं स्टैंडर्ड 3, 4 के बच्चों को. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि लाइट से पत्ता अपना खाना बनाता है. राइट? सिंपल कॉन्सेप्ट. फॉर दैट यू कैन ब्रिंग एक्चुअल लीव्स इन योर क्लास. Okay, so similarly, if you are teaching them certain winter season, suppose आप छोटे बच्चों को सिखा रहे हो कि winter season क्या है, summer season क्या है, basically seasons सिखा रहे हो. So that day, for summer season, you bring goggles, कि धूप लगता है तो हम goggles लगाते हैं, right? Sunscreen का एक बॉटल ले आइए कि धूप में हम जाते हैं तो हम sunscreen लगाते हैं, right? एंड आप एक जूस का बॉटल ले आई कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो लोग कोल्ड ड्रिंक जूस ये सब पीते हैं. एंड व्हेन यू आर टीचिंग विंटर सीजन, you actually bring a sweater, although right now it is summer season,
बट एक स्वेटर या एक जैकेट या एक मफलर, स्कार्फ, शॉल आप लेके आओ, दे विल रिलेट कि हाँ घर में भी हम देखते हैं कि मम्मा पापा दादी दादा शॉल ओढ़ते हैं, स्वेटर पहनते हैं, कैप लगाते हैं। सो आपका सीजन्स का कॉन्सेप्ट हो रहा है। अच्छा, व्हेन इट इज रेनी सीजन यू आर टीचिंग, ब्रिंग अम्ब्रेलाज। क्या हो जाएगा, अब घर से एक अम्ब्रेला ही तो लाना है, इट्स नॉट अ बिग थिंग यू हैव टू डू। अम्ब्रेला तो सबके घर में होता है, राइट? So this is what everything can be your learning aid. You can bring pebbles. अगर आप काउंटिंग सिखा रहे हो तो अब छोटे छोटे जो पेबल्स होते हैं ना, गिट्टी जिसको बोलते हैं, आप वो ले आओ, गिव देम एक्चुअल पेबल्स। सब बच्चों को 5 पेबल्स दो आप, एंड बोलो कि एवरीवन विल काउंट। कभी आप एडिशन सिखा रहे हो, यूज दिस पेबल्स टू ऐड। आई हैव गिवन यू 2 पेबल्स एंड नाउ आई हैव टेकन बैक 1। कितना बचा आपके पास? So this is subtraction. This is how they learn subtraction. So not for everything, but for 1 or 2 things you can love like bring it, because children Yeah, love. I have done in my EVS chapter. There was about plants and how plants are getting photosynthesis and the food and nutrition, all of. So I have brought that leaf and I have explained, and yes, they actually understand that thing very well. I have means done this thing. See the difference. She has witnessed it, that yes, I have done it. I have ऐसे बताते और कोई एग्जाम्पल के साथ बताते विथ virtual thing, sorry, with actual giving it in their hands, it has a lot of impact. Because what is novelty? नयापन। अगर नयापन आ रहा है तो वो अच्छे से याद रखेंगे, राइट? माला मैम, आप कुछ बोले नहीं, आपको कुछ डाउट है आप पूछो। आप कुछ नहीं पूछ रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। यस माला मैम, माला दास मैम, कोई डाउट है आपको? ऑल ओके? मैम आप म्यूट में हो। मैम यू आर ऑन म्यूट। somebody please unmute her. yes एक्सक्यूज मी मैम। मैम yes मेरा एक मैम। क्वेश्चन था। मैम हाँ जी। एक्चुअली स्पेशल चाइल्ड जैसे ऑटिज्म बच्चे, हाँ, तो मैम उन लोगों को कैसे, मैंने थोड़ी देर के लिए भी शांत नहीं बैठते हैं। आपको तो पता होगा कि ऑटिज्म बच्चे, और मैम अभी हम देख रहे हैं कि जो न्यू न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं तो हर टाइम ना एक दूसरे के ऊपर वो लोग ज़्यादा पुश करते हैं, तो कैसे मैम वो सब ठीक करे, वही मुझे पूछना था। ऑटिज्म बच्चे के लिए एवरी टाइम आपको राइम्स बोलना होगा। इवन आई डील विद वन ऑटिस्टिक चाइल्ड, ही यूज्ड टू कम। सो उनको राइम्स बहुत पसंद है, या उनको सॉन्ग्स बहुत पसंद है, या कुछ पजल होता है ना, पजल्स। आप देखोगे ऑटिज्म बच्चे का ऐसे तो ब्रेन लाइक लेस डेवलप्ड है, बट वन साइड ऑफ द ब्रेन उनका बहुत डेवलप्ड रहता है। तो वो डिपेंड करता है बच्चा टू बच्चा, बट मोस्ट ऑफ द बच्चों में उनको चीजें, जैसे कि आप कोई पजल दे दोगे ना, सपोज फ्रूट्स का पजल हो या एनिमल्स का पजल है, दे लव इट। कि वो लगा रहा है नहीं लग रहा है, लगा रहा है नहीं लग रहा है, उनका दिमाग इन्वॉल्व है, तो वो चिल्लाएंगे कम। आप देखोगे ऑटिज्म बच्चे चिल्लाते भी बहुत है। हाँ ये हाँ, तो। वो अचानक से वायलेंट हो जाते हैं। सो वो सब उनका कम हो जाएगा व्हेन यू गिव सम एक्टिविटी, जैसे कि एक पजल। पजल इज अ वेरी गुड एक्टिविटी, या राइम। अगर आप कोई भी टाइम वो बहुत ज्यादा क्रैंकी होके रखा है, नई बात सुन रहे, यू स्टार्ट सिंगिंग अलोंग विद हिम और हर, तो आप देखोगे उसको एक तरीके से आप धीरे धीरे शांत कर सकते हो विद द राइम्स एंड विद सेंसरी। जैसे उनके लिए एक्चुअली जो, हाँ बोलिए। एक्चुअली मैम मैंने अचानक कर देते हैं वो लोग, उन्हें तो पता नहीं हाँ, चलता है कि कब करेगा। हाँ, करेक्ट तो करेक्ट, दैट इज इसीलिए द, हाँ, आप खेलते मैं समझ खेलते गई, खेलते खेलते ऐसे। हाँ, समझ गई। तो आप जब भी आपको लगे कि वो ऐसे अटैक कर रहा है या वो नहीं स्टेबल है, देन यू टेक हिम और हर अवे फॉर अ साइड एंड गिव हिम अ बलून, ओके, और गिव हिम सम कलर्स टू स्क्रिबल। आप एक रेडी रखो कि आपको पता है आपके क्लास में एक ऑटिस्टिक बच्चा है, तो यू कीप वन कलर सेट एंड अ कॉपी रेडी, कि अगर जब भी वो एकदम वायलेंट हो गया तो यू कैन गिव दिस फर्स्ट। देन राइम्स आप रेडी रखो कि आज ये वाला राइम कराएंगे उसको, whenever out of the blue he is having that burst out. Also
those kind of this puzzles, very very good. आप उनको दोगे बलून्स, यू कैन गिव अ स्क्विशिंग बलून, जैसे बहुत बड़ा फुला के नहीं, छोटा सा बलून आप फुला के उसको बोलो ऐसे ऐसे करना है. या बबल रैप समझते हो आप? बबल रैप, Yes, yes. जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ एक रैप आता है जिसमें फोड़ने का रहता है, हाँ बबल हाँ रैप. आप उनको वो बबल रैप दो, इट विल काम देयर नर्वस सिस्टम. कलरिंग, पेंटिंग, इट विल काम देम. उनको क्या चाहिए ना, उनको थेरेपीज चाहिए एक्चुअली. सो अभी क्लास के अंदर तो थेरेपी इज नॉट पॉसिबल. सो क्लास के अंदर आप उनको बबल रैप, कुछ पेंटिंग, कुछ ड्राइंग, कुछ कलरिंग, स्क्रिबलिंग ही चाहे वो करे, just to calm their nervous system. Yes. And bubble wrap is very good calming. Also sensory items, very very important. Sensory items like, पहले तो मैंने कि स्क्विशी बलून दे दिया कि अब इतना सा फुला के बलून दो, बच्चा उसको ऐसे करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा, and he will relax himself. Okay. Also yes, ma'am. जो बहुत सारे छोटे छोटे थर्मोकॉल बॉल्स होते हैं ना, थर्मोकॉल बॉल्स आप उसको दे सकते हो. सैंड प्ले, आप उसको सैंड में लेके जा सकते हो. अगर 2 टीचर है तो 1 टीचर कैन असिस्ट. सैंड प्ले, सैंड में जाके थोड़ी देर खेलने दो, बिकॉज सैंड या प्ले डो या आटा, गूथा हुआ आटा, इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल. उससे उनका नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है. एंड जब बच्चे आप बोल रहे हो कि Okay. एक दूसरे को पुश करते हैं, राइट, तो उस टाइम पे जब आप देख रहे हो Yes, कि ma'am. पुश वाला टाइम आ गया है, then all make all of them stand and let's play a game wherein you all have to jump like a monkey. तो जब वो जंप करने में लगे हुए तो वो पुश करना भूल जाएंगे. आपको उनको भुलाना है. अगर वो पुश कर रहा है, वो पुश इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पुश करने में मजा आ रहा है, बट जंप करने में उनको इक्वली मजा आएगा, राइट. एक बार के लिए आप बोलो कि एवरीवन मंकी जंप्स, एवरीवन हैज टू डू मंकी जंप, तो वो ऐसे ऐसे करके मंकी जंप करना स्टार्ट कर देंगे, तो भूल जाएंगे कि पुश कर रहे थे, राइट. उनका अटेंशन इधर उधर भटकाना है ताकि जो वो गलत काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू ना करें, राइट. ऑल्सो Okay. ये मानना है कि पेरेंट्स आर योर पार्टनर्स, they are not your enemies. Okay, so instead in the parent teacher meeting saying that the child is weak or if this child is creating ruckus in the class, you have to just understand and tell the parents that this child is improving slowly, and when we work together, अगर आप भी घर पे ध्यान दोगे, मैं भी ध्यान दे रही हूँ, so I'm sure कि this child is going to flourish, this child will 100% improve, right. And the most ma'am. important thing is आपका खुद का well-being, because children borrow your energy. आप देखोगे कि आप खुद चिड़चिड़ हो ना किसी दिन, तो बच्चे और आपकी बातें नहीं सुनते. अगर आप खुद, आपका मूड खराब है, आपका तबीयत ठीक नहीं, उस दिन आपको लगेगा ये और ज्यादा बदमाशी कर रहे. Why? Because children gets the energy from you. वो ट्रांसफर कर देते हैं अपना खुद का एनर्जी. जैसे अभी अल्पना मैम की तबीयत खराब है, राइट, तो अल्पना मैम देखेगी कि आस पास सब कोई और चिड़चिड़ हो गया है और कोई उनकी बातें नहीं सुन रहे. जब खुद का तबीयत, एनवायरमेंट टेक्स दैट एनर्जी, इट इज वेरी नॉर्मल. तो आप अपना वेलबींग, अपना अच्छे से ध्यान रखिए. हमेशा छोटे छोटे चीजों को सेलिब्रेट करिए. आप खुद भी योगा, मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए, बिकॉज यू आर डीलिंग विद सो मेनी चिल्ड्रन. हम घर में एक बच्चे से परेशान हो जाते हैं, राइट. आप किसी भी मदर से पूछिए, एक बच्चे की माँ, जैसे मैं अपने एक ही बच्चे से परेशान हूँ, राइट. और आप लोग तो 3 बच्चों को संभालते हो, और एक क्लास नहीं, आप 5-6 क्लास संभालते हो. एक क्लास के तुरंत बाद आपका दूसरा क्लास होता है. You don't get a breathing time. So for that, you have to take care of yourself. You have to drink a lot of water. खुद में भी आप लोगों को डेली 5 मिनट्स के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, because your energy will get transferred to your children, right? And if you are bubbling with energy, the classroom will bubble with energy. All the children will bubble with energy, because happy teachers make happy classrooms. हम चाहते हैं सब बच्चे खुशी खुशी पढ़े. So all of you will have to be happy. क्लास में आते ही अगर आप देख रहे कोना में एक बच्चा उदास है, तो आप उसके पास जाओ एंड बोलो, बेटा we will not start the class until you give me a sweet smile. हम क्लास नहीं स्टार्ट करेंगे जब तक आप स्माइल नहीं करो. तो उसको लगेगा, ओ माय गॉड, आई एम सो इम्पोर्टेंट, मतलब मेरे स्माइल या नहीं स्माइल करने से पूरा क्लास रुक गया.
So every child should feel that they are very important, they are loved, they are cared, and you do that. आप प्यार करते हो, लेकिन आप बोलते नहीं हो, आप जताते नहीं हो, राइट? आपको जताना है वो प्यार, आपको लुटाना है प्यार. Only then they will treat you as their equal, their friend, their buddy, and they will open up and actually help you to learn the subject. Okay? Now, so आपको अभी मानना है कि एक बच्चा एक सीड है, ठीक है? सीड क्या बन सकता है? सीड एक फॉरेस्ट बन सकता है, राइट? बिकॉज सीड से एक प्लांट हुआ, प्लांट से ट्री बना, फिर ट्री के जो फल आएंगे उस फल के बीज से दोबारा ट्री बनेगा, राइट? सो जस्ट लाइक अ सीड हैज अ पोटेंशियल टू मेक अ पूरा फॉरेस्ट, your child in your class, each child is a tree, and when each child will grow, all of the trees will go and it will become a, your classroom will become a forest or a garden. Initially, because they are small, they will be garden, and once they grow up they'll become a forest, right? So you have to consider every child is like a tree. You may never know which child will become scientist in the future. तो हमें उसको, बच्चे को उस रिस्पेक्ट से देखना है कि आज वो आपके लिए छोटा सा 3 साल का बच्चा है, कल को यही जाके सीएम बन सकता है, यही जाके साइंटिस्ट बन सकता है, लीडर बन सकता है, हु कैन चेंज द वर्ल्ड. सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to water this plant. So this is a plant, right? And what I am going to do, I am going to water the plant. So I will not water a lot of water because plant सड़ जाता है, right? अगर आप पानी एक लिमिट से ज्यादा दोगे, प्लांट सड़ जाएगा. If you give very less water, plant सूख जाएगा. So right amount of water is required. And we know that every plant is different. Suppose this is money plant. This will require more water. But a jade requires less water. उसको आप थोड़ा सा बूंद बूंद पानी देके कर सकते हो, right? So you know your child and you know which child require which quantity of water to grow. And not just water. Water means love. But for sustenance, they need sunlight also. That is the subject matter. So love and subject matter will go hand in hand, right? Subject matter you will introduce along with activities, and love is coming under the category of emotional connection with the child, understanding the child, your behavior towards the child. Everything together constitutes love, right? And we know that water is as important as sunlight. Therefore, love is as important as the syllabus you have to complete, right? And always remember, syllabus is not the only thing. To be a good teacher, you have to complete the childhood and not just complete the syllabus. Okay. So now I would ask you, after today's session, what is that one thing you'll start doing differently in your classes from Monday itself? Tomorrow is Sunday. From Monday itself, what one thing each one of you will say that which one change you'll bring in your classroom after my session, one takeaway. Yes, starting with Kiran ma'am. Beta, 1 minute, my class is going on. I'll give you 5 minutes after. I'm trying to अपना जो फोकस मुझ पे करे, Focus मुझ पे करे, बच्चे पे, right? बच्चे को फोकस मेरे पे हो. हाँ, so how will you do that? आप क्या change करोगे कि बच्चे का focus आप पे, आपका बच्चा, मतलब what change you will make? फर्स्ट में ब्रेन जिन एक्टिविटी एक बार करवाएंगे. हाँ. देन जो बोले फ्रॉग जंपिंग, Yes, movement based. Yes. एंड Start with 1 minute of ओम chants. अब आप देखो, जब बच्चा बात कर रहा है और आप उसको ओम करने बोल दिए, तो ओम बोलने में वो बात उसको छोड़ना ही पड़ेगा, तभी ना वो ओम बोलेगा. वेरी गुड. इट्स टुम्पा मैम. टुम्पा मैम, व्हाट चेंज विल यू डू? एक क्या चेंज करोगे अपने क्लासेस में मंडे से आप? पहले बच्चे को ठीक से बैठाएंगे मैडम, तो
उसके बाद पहले चुप कराएंगे, उसके बाद स्टडी स्टडी कराएंगे, कुछ पोएम्स वगैरह, कुछ एक्टिविटीज, यस, कुछ सॉन्ग्स। सॉन्ग्स, एंड हाँ, आपको बैठा, आपने जैसे बोला कुछ, पहले बिठाएंगे, तो आप बोल सकते हो कि चलो सबको आज बटरफ्लाई की तरह बैठना है, तो दे विल फ्लैप देयर हाँ हैंड्स एंड सिट लाइक अ बटरफ्लाई, लाइक दिस। हाँ। बटरफ्लाई का विंग जैसे घूमता है ना। यस यस, कंटिन्यू। तो मैडम मेरा एक तो क्वेश्चन है, हाँ जी, हाँ जी। तो एक दो बच्चा है मैडम, मतलब नॉट प्रॉपरली सिटिंग, लोग ठीक से बैठते नहीं है, मतलब हाथ में वाटर बोतल लेके पूरा क्लास घूमते रहते हैं, तो कैसे उन लोग को चुप से मतलब एक जगह आप उनसे बैठाएं? स्टार्ट कर सकते हो कि एवरीवन टुडे विल बिकम लाइक बटरफ्लाई एंड सिट लाइक अ बटरफ्लाई एंड फ्लैप आवर विंग्स। आप बोलो कि सब कोई आज हम लोग बटरफ्लाई है, आज हम लोग ह्यूमन बींग्स नहीं है। आज हमारा क्लास एक मैजिकल क्लास है एंड हम लोग ह्यूमन बींग्स, हम लोग इंसान नहीं है, हम लोग बटरफ्लाई है। तो सब कोई चलो तितली की तरह उड़ो। तो कैसे उड़ते हैं वो अपने, कुछ कोई लोग ऐसे उड़ेगा, कोई लोग ऐसे उड़ेगा, तो उनका टेंशन आ जाएगा कि अरे चलो आज तितली बनना है, राइट। एंड नाउ तितली उड़ी, उड़ के चली, सो यू कैन यूज दिस राइम सॉन्ग। एंड देन नाउ अब सारे बटरफ्लाईज अपने अपने प्लेस में बैठ जाओ। सो सारे बटरफ्लाईज अपने अपने प्लेस में बैठ जाएंगे, तो दे विल से कि उनको लगे ये पार्ट ऑफ द गेम है। बटरफ्लाईज चलो चलो अपनी हिंदी कॉपी निकालो या इंग्लिश कॉपी, वट आपको सीखना है, तो वो बटरफ्लाई बने हुए हैं, वो हर काम बटरफ्लाई बन के करेंगे, एक हाथ से पंख उठा रहे और वो बैग से कॉपी निकाल डेली रूटीन से थोड़ा कुछ अलग। कुछ अलग। यस, ब्रेकिंग द रिदम, क्योंकि उनको तभी वो आपका बात मानेंगे कि उनको लगे अरे मानेंगे, हाँ। आज तो मतलब मैं बटरफ्लाई हूँ। उनको हर दिन कुछ इंटरेस्टिंग फील करवाना होगा क्लास में। यस, तो सपोज एक दिन आप बटरफ्लाई किए, अगले दिन आप लायन बना देना उनको, लायन, किंग ऑफ द जंगल, तो उनको और मजा आएगा। एंड यू लेट देम रोर ऑल्सो। अब ऐसा नहीं कि अब लायन बना है तो वो बोलेगा लायन तो दहाड़ता है, लेट देम रोर 1 or 2 times, यू कैन, द लायन कैन रोर, बट देन आपको लायन की तरह होमवर्क, लायन अपना होमवर्क टाइम पे करता है, लायन अपना क्लास वर्क टाइम पे करता है, लायन बोर्ड में लिखा हुआ सारा चीज कॉपी कर लेता है फटाफट, तो उनको लगेगा ओके आई एम अ लायन, सो आई विल बी ऑल्सो डूइंग इट, फटाफट अपना वर्क फिनिश करेंगे। ठीक है, ओके। ओके मैडम। एनी अदर डाउट्स? नो मैडम। ओके, यस श्री पन्ना मैम, Yes, ma'am. what differently you will do from Monday onwards? Ma'am, from Monday, I'll come the class with more positivity and Yes. starting the class with chanting, as you say. Hmm. Then I will explain them more from the surroundings, from our surroundings, Yes, right? yes, And explaining their few lessons from the story which they connect more. I'm yes. trying, ma'am. I will Thank you. try. Okay, very good. Thank you, ma'am. Yes, Tanya ma'am. Ma'am, I'm already doing because before this also I have done one session with you. Very good. So one thing what I have learned today that one concern was there about the concentration. So this I will do that in chant or meditation. This I actually do with my own son also because they are also very naughty. Yes, yes, So I actually do. But in school, what happened now means I have more duties, so that time is not yes. getting. But surely I will do One this one. minute, only 1 minute. Yeah. For that, because few only 1 and 2 children are there that who are less concentrate in studies and their mind are going this and that side. So that this is what today I have learned this thing. And yes, practical work, little, any one chapter and all I am doing. Like lead I have shown, and in one English class also there was a story about one flower. So I have brought that flower, it's a little bit small one, Yes, and I have shown them. So that from that day I have understood that these are very more interesting and yes, very more knowledgeable for them to learn in future. This yes. I have. Yes, and you can also start more of brain gym, like Yeah. for Okay. concentration, because you teach elder children, brain gym is Hmm. important. Very good. Okay. Yes, Kushi ma'am. यस मैम, फर्स्ट आई विल डू मेडिटेशन इन क्लास। जैसे कि आपने कहा कि मैं सभी को एक मेडिटेशन कराऊंगी। देन जब मैं चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, मैं बहुत ही अब जैसे कि आपने भी बताया मैम, वैसे ही मैं प्रैक्टिकली मतलब कोई भी चीज़, जैसे मैथ्स हो रहे हैं, एड्स, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो मैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग मतलब
जो थिंग्स होते हैं, जो चीजें होते हैं, उनको पहले मैं सिखाऊंगी। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब प्रैक्टिकली सिखाऊंगी। तो उसके बाद में जो चीजें होते हैं कुछ लेके आना होगा, तो उस तरीके से मैं उनको तो एक्सप्लेन करूंगी। मैं बहुत ही मतलब प्रैक्टिकली अच्छे से। यस, तो आपने असेंडिंग ऑर्डर बोला ना, तो अभी मुझे एक आइडिया आया। यार ये बचपन में एक वो डॉल्स आती थी, एक बड़ी डॉल, उसके अंदर यस छोटी मैम। डॉल, फिर छोटी डॉल। अगर आपके घर में यस वो मैम। है ना, तो आप वो ले आओ। सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर यस मैम। बड़ी, बड़ा। तो उनको असेंडिंग ऑर्डर समझ में आ जाएगा। या आप बच्चे का एग्जाम्पल दे देते हो कि जब बेबी बॉर्न होता है तो कितना छोटा सा होता है, न्यू बॉर्न बेबी। फिर वो टॉडलर यस बन मैम। जाता है, फिर वो चाइल्ड बन जाता है, फिर वो टीनेजर बन जाता है, यस फिर वो मैम। एडल्ट बन जाता है। तो अब ऐसे कुछ सिंपल एग्जाम्पल जो उनको दिखता है, उनके छोटे भाई बहन होंगे या बड़े भाई बहन होंगे, वो ज्यादा कनेक्ट करेंगे। वेरी गुड। यस मनीषा मैम, if you are comfortable you can say, or else it's fine. I'll come to Alpana ma'am. Again, if you are okay you can say, or else it's okay. Mala ma'am, माला मैम, आप क्या करोगे अलग मंडे से? व्हाट इज द की टेक अवे? मैम, यस मैम, आप मैम आप जैसे बोले हैं कि राइम्स के जैसे बीच बीच में उन लोगों को कुछ राइम्स बोलेंगे, और जब भी वो लोग ज्यादा हाइपर रहेंगे तो कुछ प्ले के द्वारा उसको शांत करने की कोशिश करेंगे मैम। वेरी गुड। ओके। यस, सो आई यस थिंक, मैम। यस यस मनीषा मैम। हाँ, मैं एक्चुअली रूबा मैम बोलने में मैम। से थोड़ा प्रॉब्लम, मैम प्रॉब्लम हो रही है। तबीयत ठीक नहीं है आपकी? नहीं मैम, हाँ हाँ, फीवर छोड़ है। सकते हो आप। हाँ, अगर आपको बोलने का मन है तभी आप बोलो, कोई जरूरी नहीं है। नहीं नहीं ओके। मैम मेरे क्लास में बच्चे लोग ज्यादातर क्या करते हैं, बहुत चंचल है, बैठते नहीं है, बहुत ज्यादा बात करते हैं। तो मैम ज्यादातर बच्चे लोग को, जैसे आप बोल रहे सिंगिंग में, तो उन लोग को बिठाने का कोई मतलब, ये बोलिए, जैसे वो बैठ बैठ के छोटे थोड़ा। रहते हैं। हाँ। सबसे पहले जब वो पहले जब खड़े हैं ना, तब आप उनका साथ दीजिए। तो हर चीज में आप मना करेंगे तो वो आपका साथ नहीं देंगे। तो जब वो खड़े ऑलरेडी घूम रहे हैं, तब आप बोलिए कि लेट्स मेक अ ट्रेन। आप क्या पढ़ाती है मैम? क्या सब्जेक्ट पढ़ाती है? अब मैं मदर टीचर हूँ, सब सब्जेक्ट ही लेती अच्छा, हूँ। ओके। यस मैम। कौन सी क्लास? LKG। एलकेजी, ओके। सो यस मैम। एलकेजी में आपको 1 2 3 4 ABCD ये सब भी पढ़ाना रहता है? यस ओके। मैम। यस। यस। तो आपको मंडे ट्यूसडे वेंसडे सिखाना होता है वीक हाँ पे? हाँ। सो आप जब वो बच्चा घूम रहे हैं ना, तो आप जब ऑलरेडी देख लो कि ऑलरेडी बच्चे घूम ही रहे हैं, तो आप उनको एक ट्रेन बना दो। ट्रेन, ट्रेन में क्या है ओके। कि आप सबसे आगे आ जाओ, आप भी बन जाओ पहले, उनको बैठाने से पहले आप भी बन जाओ ट्रेन, ठीक है? यस मैम। आप इंजन बन जाओ और उनको सबको डब्बा बना दो ट्रेन का, बोगीज होता है ना। तो एक यस मैम। बोगी है जनवरी, एक बोगी है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। वैसे ही उसके बाद जैसे ही दिसंबर तक खत्म हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। आपके क्लास में जितने बच्चे उसके हिसाब से, अगर वो भी खत्म हो गए और बच्चे आपकी क्लास में, तो 1 to 10 या A to Z उसमें ले आओ आप, ठीक है? तब आप बच्चा और आप भी चुक 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 करो उनके साथ और घूमो। तब एक बार क्या होगा, उनको लगेगा अरे मैम तो मेरी जैसी बन गई, मैम तो बच्ची बन गई मेरे साथ। तब अब आप बोले देखो मैंने आप लोग के साथ खेला ना, अब आप लोग सब बैठो, देखो फिर से हम लोग खेलेंगे, फिर से हम लोग इस बार बनेंगे। यस तो, मैम। तो गाड़ी हम लोग ट्रेन बनेंगे, इंजन बनेंगे, एरोप्लेन बनेंगे। लेकिन अभी आप लोग एक बार बैठो, आप इस चीज को एक बार ट्राई करना कि एक बार आपने उनकी तरफ आके उनके साथ खेला, इंजन डब्बा बन के। तब अब जब आप उनसे बात मानवा रहे हो अपना, तो वो मानते हैं कि नहीं। यू विल सी अ डिफरेंस कि पहले अगर 5 बच्चे नहीं मान रहे थे, तो अब एक ही है जो नहीं मान रहे, बाकी 4 एटलीस्ट। हाँ मैम हमारा बात सुनी, तो इट इज माई माई ड्यूटी टू नाउ लिसन, ठीक है? तो ये आप ट्राई करना। यस मैम, थैंक यू कल्पना मैम, हाउ आर यू? आपको देख के लग रहा है आपका बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। मैम। यस मैम। कल्पना मैम, यू आर ऑन म्यूट। यस यस मैम, एक्चुअली बहुत फीवर है, लास्ट नाइट से फीवर है और थ्रोट प्रॉब्लम भी है, इसलिए ज़्यादा बात भी नहीं कर पा नहीं रही हूँ नहीं मैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
सो मैं फिर समझ भी सकती हूँ। हाँ, एक सवाल मैं करती हूँ कि जैसे कि देखिए आप जो जो आप बोले हैं सब इस तरीका मैंने अपना लिया, जैसे कि एक्टिविटी के थ्रू बच्चे को बोलना है। हाँ, वो लोग बहुत सब मजे मजे लेके एक्टिविटी अगर हम कराते हैं तो मजे लेके करते हैं और पूछते भी हैं मैम और एक्टिविटी कब होगा। तो ठीक है, जो वो बात भी ठीक है, लेकिन बच्चे जो है इतना नॉटी है, इतना एक्टिव, अगर मैं थोड़ा-सा क्लासरूम से इधर से उधर हो जाऊँ तो मतलब कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। तो उसका कुछ उपाय बताइए, मैं क्या करूँ तब? देखिए एक बात बताइए, अगर वो नहीं नॉटी होंगे तो क्या मैं और आप नॉटी होंगे? एकदम, तो एकदम, इट इज़, एकदम। तो वो तो इनका हक है, वो बड़े हो गए तो ठीक हो ही ऐसे-ऐसे जाएंगे। अलग ही चीज़ कर देते हैं उस टाइम पे सँभालना मुश्किल हो जाता है, मतलब तब मुझे पनिशमेंट अगर मैं बोलूँ तो डर जाते हैं कि दूसरे दिन से स्कूल नहीं आना चाहते हैं कि मैम पनिशमेंट करेगी। सो तब मैं क्या कर सकती हूँ? उनको आने दीजिए, वापस आके बदमाशी करने दीजिए। बदमाशी के बीच में वो पढ़ाई करके निकलेंगे। आप सोचें कि एकदम डिसिप्लिन हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये उनका एज है, विथ हुँ, एज ही उनको डिसिप्लिन आएगा, राइट? वो नहीं आएगा। बट हाँ, नॉलेज उनको आना चाहिए, कनेक्शन उनको आना चाहिए। ये चीज कभी नहीं होना चाहिए कि बच्चा घर जाके ये बोले कि नहीं नहीं मैम पनिशमेंट देगी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। वो उससे आपका नाम, स्कूल का नाम भी खराब होता है कि बच्चे डर रहे हैं स्कूल जाने से। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स डिसिप्लिन में लाना पड़ता है बच्चों को, बट जस्ट एक बार आप बोल दिए कि यू नो वी हैव डन, अगर हमने एक्टिविटी, अगर आप मेरा बात सुनोगे तो हम दोबारा से एक्टिविटीज करेंगे, फिर हम बाहर भी जाएंगे, प्ले एरिया में भी जाएंगे। तो यही आप बोल सकते हो। और बच्चों को आप एकदम सोचोगे कि बिल्कुल नॉटी नहीं करे, नॉटीनेस वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप छोटे बच्चों को साथ डील कर रहे हो, नॉटीनेस तो रहेगी। यस और मैम। अगर आप लोगों को एक्टिविटीज के आइडियाज चाहिए और स्टोरीज के लिए आप क्या क्या ला सकते हो, तो आप फॉलो कर सकते हो न्यू एबीसी लर्निंग, जिसमें मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस डालती हूँ जिसमें टीचर्स क्या यूज कर सकते हैं एज प्रॉप्स। जैसे किसी दिन आपको एक स्टोरी में, जैसे स्टोरी का आप कैरेक्टर बन सकते हो, आप अपने बैग में वो कैप ला सकते हो, अगर वो स्टोरी का कैरेक्टर डिमांड कर रहा है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह है न्यू NEW ABC लर्निंग। ठीक है? तो उसमें बहुत सारे मैं ब्रेन जिम एक्टिविटीज डालती रहती हूँ, आप लोग उसको फॉलो कर लो। एंड वो एवरी वीक आता है, हर दिन ही आता है कुछ ना कुछ। कभी कुछ टिप्स है कि ऐसे आप स्टोरी बता सकते हो, कभी कुछ टिप्स है कि किस टाइप का स्टोरी आप बता सकते हो। बहुत सारे बुक रिकमेंडेशंस भी हैं कि आप ऐसे, अगर आप मॉरल साइंस की क्लास ले रहे हो या जो भी आप क्लास ले रहे हो उससे रिलेटेड बुक्स है। और स्पेशली द मेन थिंग इज एक्टिविटी बेस्ड। तो मैं पेपर कप, घर की चीज यूज करके एक्टिविटीज बताती हूँ, तो आप सब उसको जरूर फॉलो करो। एंड आप देखोगे कि आपके चिल्ड्रन में जरूर इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि मैंने देखा है हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन में काफी इंप्रूवमेंट आया विद स्पेशली विद द ब्रेन जिम एक्टिविटी। और ब्रेन जिम एक्टिविटी एक दो नहीं होते, देर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज। देर बायलैटरल एक्टिविटीज, आप दोनों हाथ से करवा सकते हो। देर बॉडी मूवमेंट एक्टिविटीज, दैट इज ऑल्सो ब्रेन जिम एक्टिविटी। सो ऐसे मूवमेंट बेस्ड एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिकल बेस्ड एक्टिविटीज करा सकते हो। एंड द वे वी टीच, ओम चैंट्स, द वे, इट इज नॉट दैट कि आपको करना है, मैंने बोला है सिर्फ इसलिए कराना है, नो। द वे शुड बी विथ लॉट ऑफ लव। एंड आप लोग ऑलरेडी बहुत प्यार कर सकते हो, बट मे बी पढ़ाते वक्त आपको वो प्यार शायद नहीं झलकता है हर समय, थोड़ा आप स्ट्रिक्ट हो जाते हो, बट ट्राई टू मेक दैट लविंग फेस एंड वो इमोशनल फेस, ताकि बच्चा आपसे कनेक्ट करके जल्दी सीखे और आपकी बात माने। ओके, आई होप आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगा होगा and you get value out of it. I would give my all the best wishes to all of you. आप अपने क्लासेस को एकदम मस्त और वाइब्रेंट और बहुत ही अच्छे खुशी खुशी आप लेना। यस प्रगति मैम, यू वांट टू से समथिंग? मैम यू आर ऑन म्यूट। सॉरी नो सॉरी। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो मैम आप लोगों, मतलब जो भी आप लोगों का क्वेरी था आप लोगों ने पूछ लिया, क्लियर हो गया ना? यस मैम। एक एक क्वेश्चन मेरा और था मैम, यस अगर बच्चे को अगर ज्यादातर लिखाने में इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा लिखने में? बच्चे लिखने में
So बच्चे लोग suppose को अगर हैंड राइटिंग में इम्प्रूव करना है तो हम लोग उसमें क्या उनको क्या अलग से बोल सकते हैं, ये थोड़ा सा बता। बता एंड मैम वन मोर कंसर्न, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि घर में लिखता है बट स्कूल हाँ में क्यों नहीं लिख रहे हैं? हाँ, ये समझ भी एक प्रॉब्लम है। स्कूल में जो घर में So लिखते हैं one स्कूल reason में got yes. so one reason children are not writing in school is because children are distracted. क्योंकि स्कूल में उसको बाकी फ्रेंड्स दिख रहे हैं, राइट? उनके क्लासमेट्स दिख रहे हैं, उनकी फ्रेंड्स दिख रहे हैं, तो उनको लगता है कि खेल सकते हैं, मैं बातें कर सकता हूँ उनके साथ। आई हैव द सेम प्रॉब्लम विथ माई ओन चाइल्ड। मेरा बच्चा घर में सब कुछ दिखता है बट क्लास में जाके उसको मन करता है उसके साथ बात करे, उसके साथ खेले, तो वो नहीं लिखता है। तो आता है बट लिखता नहीं है क्लास में। सो दिस इज वन रीजन। सेकेंड रीजन इज कि आप जैसे मनीषा मैम पूछ रही है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एकदम छोटे बच्चे जो ABCD या 1 2 3 4 क ख ग घ सीख रहे हैं, उनके साथ अब हवा में लिखना यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। फॉर एग्जाम्पल कई बार होता है कि जिसको बहुत ज्यादा अच्छे से लिखना नहीं आता ना, वो लिखना नहीं चाहता। वो बच्चा अच्छे से लिख रहा है, उसका हैंड राइटिंग गंदा हो रहा है, तो यू आस्क देम टू राइट विद फिंगर्स फर्स्ट। आप उनको बोलो कि आओ, यू ब्रिंग मेक हिम कम नियर यू एंड मेक हिम टर्न अराउंड, एंड उसके पीठ में आप लिखो सी एंड आस्क देम कि क्या लिखा मैंने। कभी F लिखो आप एंड पूछो क्या लिखा, तो आप पहले देखो कि कौन सा वो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, वो आप नोट डाउन करो। yes. आपने देखा कि ये वो नोट जल्दी से नहीं समझ पा रहे, आप वही उससे वर्ड आप हवा में लिखवाओ। सपोज S लिखने में उसको प्रॉब्लम है, तो आप बोलो हवा में विथ योर पॉइंटर फिंगर यू राइट S। आप इसमें उसको करेक्शन करो कि नहीं बेटा ऐसे आप कर्व करो, फिर राइट एंड फिर कर्व। हैंड को पकड़ के आप उसको हैंड होल्ड कराओ पहले हवा में, ओके? अगर आप देखो ये बहुत अच्छा हवा में लिख रहे हैं, देन यू गिव सर्टेन प्लेडो मतलब पता है आपको? प्लेडो आप बोलो, उसमें आप ऐसे करके लिख के दिखाओ। प्लेडो मतलब जैसे गीला आटा होता है ना, आटा गूथा हुआ आटा, उसमें अगर कोई मैचस्टिक से लिखेगा या फिंगर से लिखेगा तो ऐसा ऐसा शेप बन जाएगा। जैसे वो प्लेडो को मैं पतला कर ली, ठीक है, यहाँ में शेप बना रही, तो अब इसमें करो। तो पहले आपने हाथ में कराया, पीठ में कराया, देन यहाँ कराया। नाउ यू अब आप देखो, आप सेम लेटर उसको पेंसिल से लिखाओ, आप देखोगे उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो वैसे तो कुछ ही बच्चे होंगे, नॉट एवरीवन, तो वो कुछ 3 4 को आप एक जन को लो कि, या फिर एक दिन आप डिसाइड करो कि आप वो 5 बच्चों को पीठ में लिखवाओगे। उनके पीठ में लिखोगे, आप पूछोगे आइडेंटिफाई करो, क्या गेस करो कि क्या वर्ड है, देन आप हवा में लिखवाओगे सेम जो गलत कर रहे हो। एंड फिर आप प्लेडो, एक ही प्लेडो में हो जाएगा आपका सब बच्चों को, क्योंकि प्लेडो बार बार वैसे करके प्लेन कर सकते हो उसको, ठीक है? प्लेडो में लिखने के बाद वही लेटर आप कॉपी में लिखो, तब वो बच्चा का हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगा। एंड जो बच्चे घर में लिखते हैं और यहाँ नहीं लिखते, वो डिस्ट्रैक्टेड है, वो बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। वो लिखने की जगह उसको लग रहा है अरे वहां वो उसकी फ्रेंड बैठी है, अरे यहाँ पे ये बच्चा का बॉटल है, ये है, तो क्लासरूम में इतना कुछ दिख रहा है, वो डिस्ट्रैक्टेड है। तो उसके लिए उसको आप वही प्रैक्टिस, एज वी से कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो उसको आप इंडिविजुअली थोड़ा प्रैक्टिस करो। किसी बच्चे को थोड़ा इंडिविजुअल अटेंशन देना पड़ता है, तो उनको आप अपनी तरफ से थोड़ा इंडिविजुअल अटेंशन दो। क्लास में जब बच्चों को आप दूसरा चीज करा रहे हो, उनको उनके पास खड़े रहो, क्या करेंगे? अगर प्रगति मैम, अगर आप उनके सामने खड़े हो गए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको लिखना ही पड़ेगा। ये भी आप जब अपने डेस्क में बैठे रहेंगे तो वो कुछ फाकीबाजी कर देगी, बट आप पास चले जाओगे तो वो लिखना ही पड़ेगा। तो ये सब टेक्निक्स यूज करके, और पेरेंट्स को आप ये बता सकते हो कि मैम इट इज वेरी मच पॉसिबल, बहुत बच्चे घर में लिखते हैं, घर में आप अकेले हो, राइट? और क्लास में क्योंकि दूसरे बच्चे भी, कुछ बच्चे इतने साल से वो स्कूल आ रहे तो फ्रेंड्स बन गए, उनको मन करता है बात करने का, तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन की वजह से नहीं लिखना चाहते। ये तो बोलते हैं। हाँ हाँ। Any other issues you face? You want to say something, Pragati ma'am? No, not me. So all the concerns are already discussed. All right. All right. All right. Anything else, ma'am? Anything else? और किसी का कुछ है कंसर्न?
No, ma'am. Mala ma'am. ओके एवरीवन स्माइल। माला मैम आप बहुत कम स्माइल कर रहे हो, स्माइल ज्यादा करिए। नहीं। हाँ, क्योंकि आप स्माइल करोगे ना, स्माइल शुड बी कंटेजियस। कंटेजियस क्या होता Yes. है? जैसे बुखार, आपको बुखार होगा, आपके घर में हस्बैंड, बच्चा, सबको बुखार होगा, राइट? And आपका एनर्जी आपके फेस पे शो होता है, यस रिफ्लेक्ट यस, करता है। ऑलवेज इन Exactly. एवरी क्लास। अगर आपका 8 पीरियड्स है, 8 पीरियड में कहीं बच्चे तो वो नहीं देखेंगे ना आपका 8 पीरियड है। Every Exactly. period, every time your energy should be reflected, you should be smiling. Yes, better step. Yes, you can. No. All right. Thank you so much for joining. Thank you, ma'am, for Thank giving you, us ma'am. the yeah. Okay. Bye bye Thank you bye. so Thank much. you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Thank you. Bye. 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 Bye, ma'am. Bye.